व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स? इसेंशियली क्वांटम मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो क्वांटम है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल. तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वी टॉक अबाउट द सब एटॉमिक स्केल. ठीक है. तो लाइक बिफोर वी डाइव इनटू इट विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द मैक्रो वर्ल्ड और वहाँ से हम ज़रा माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं. सपोज करो यू हैव लेट्स से अ टब. ठीक है. टब के अंदर पानी है और you submerge let's say a toy duck in this, and then you use an oscillator or your finger or you throw a rock inside the water. क्या होगा? It will produce a wave. ठीक है. The wave will travel and it will cause the duck to move. ठीक है. What is a wave? It transfers energy, right? So you transfer this energy to the duck and the duck gains kinetic energy and the duck starts to move. सही है. अच्छा, now imagine instead of throwing one rock if you put in an oscillator. ठीक है ना. आपने मोटर के साथ लगा दिया इसको, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही है and it continues to produce a wave. ठीक है. So as this wave progresses through, eventually your duck will move from here to the end of the tub. ठीक है ना. It will travel some distance eventually. अगर let's suppose you take a bigger duck, it will move slowly, but eventually if you keep the motor on and the wave keeps pushing it again and again and again, eventually after some time period it will reach the end. ठीक है ना. That's the logical conclusion that we draw from our what we say classical understanding of waves. ठीक है ना. classical wave theory. अच्छा, अब इसी example को let's build in more detail in the micro world. ठीक है ना. तो you have for example an atom. ठीक है ना. एटम का एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड देन यू हैव एन इलेक्ट्रॉन दैट सॉर्ट ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है ना. दिस इज योर एटम. नाउ इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर sort of O level chemistry or any chemistry, you can remove this electron if you give it sufficient energy. Ionization energy कहते थे उसे. ठीक है. तो if you give this electron enough energy, it will escape the orbit और this will become basically a positive ion और electron निकल जाएगा. ठीक है ना. तो अब आइंस्टाइन ने क्या किया? he proposed के let's look at a wave. ठीक है ना. light को traditionally from what you've learned up until this stage, light is what? Light is an electromagnetic wave. ठीक है. and what do waves do? waves transfer energy. ठीक है. तो naturally इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने एनर्जी देनी है तो आई कैन गिव दैट एनर्जी थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज़ लाइट. ठीक है ना. नथिंग टू absurd about that. तो फिर मैंने क्या किया? आई डिज़ाइंड अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलते हुए मैं देख तो नहीं सकता ना. तो मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिखानी है इससे मैं विजुलाइज कर सकूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर लीविंग. तो देन what I did was, what the scientist did was, okay, they took a metal plate, जो is in our scenario was zinc. ठीक है. and then this was sort of had something like this. ठीक है ना. this was a gold leaf experiment if you seen it before. so you have a gold leaf suspended over here. ठीक है. तो this is your gold leaf and throughout this you have a negative charge. ठीक है ना. तो the zinc plate and the gold leaf are all negatively charged. now what happens is if I just put this नीचे थोड़ा सा. अच्छा, तो what happens is कि if I shine light on this electromagnetic wave on this, let's say मैं UV light इस पर मारता हूँ. ठीक है. तो the electrons will gain energy and they will escape. ठीक है. तो the electrons let's suppose leave from over here and as the electrons escape इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और eventually ये जो गोल्ड लीफ है that is sort of separated because of repulsion between negative charge. जब यह नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगी तो this gold leaf will fall. ठीक है ना. तो ये फ्लैट हो जाएगा. तो इससे when the gold leaf falls from there we can experimentally determine कि हाँ यार मैंने जब UV लाइट मारी तो मेरे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे. ठीक है ना. तो this experiment
essentially when your gold leaf falls, when you shine electromagnetic radiation. This is your gold leaf experiment. And this phenomena कि आप किसी मेटल के ऊपर लाइट मारो और इलेक्ट्रॉन निकले, इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक emission. So I'll write that down, photo electric emission. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक emission, if we look at it by the book और we हम इसकी definition देखें तो the definition is sort of simple. It is कि photo electric, the release of electrons from the surface of a metal when electromagnetic radiation is incident on it. ठीक है, as simple as that. What is photoelectric emission? It is the release of electrons from the surface of a metal when electromagnetic radiation is incident on it. अच्छा, अब let's suppose, अब the interesting part comes now. Remember कि हमने discuss किया था कि if you have a duct, ठीक है, and you continue to provide a wave or continue to provide energy, it will eventually move over here. ठीक है ना. अब quantum mechanics में it didn't quite happen as planned. तो when Einstein was sort of observing this, अब उसने क्या किया, he found something very interesting. So you had your, let's say your zinc block, it wasn't, and over here you have your electrons. ठीक है, अब what he did was कि he observed कि मैंने एक यहाँ पे let's say रेड लाइट मार रहा हूँ, ठीक है, और मैं रेड लाइट मारता गया हूँ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, द गोल्ड लीफ डज नॉट फॉल. लेकिन when I change this from red light to, let's suppose, UV light, so then the gold leaf falls. Okay, interesting. If I change the metal, मैं इसको जिंक की जगह let's suppose मैं आयरन कर देता हूँ. Now if I shine blue light, so the gold leaf falls. But if I shine red, if I shine blue light on zinc, so it does not fall. Hypothetically, like this is all. I am not aware of the exact number, but the exact figures. लेकिन this is sort of what was observed. तो अब इससे एक बड़ी interesting dilemma create हुआ. Waves के अंदर you have essentially two things. ठीक है ना? You have the intensity of a wave and you have what's called wavelength या frequency, जो कि sort of related है क्योंकि electromagnetic radiation में c constant होता है, speed of light is constant, तो lambda कह लो या frequency कह लो, एक ही बात है. तो you have frequency which is one property and you have intensity which is one property. He then realized कि अच्छा red light से नहीं निकल रही, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम red light की intensity बढ़ा देते हैं. ठीक है ना. इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है ना. तो इफ आई प्रोवाइड मोर एनर्जी, इफ आई टेक अ रेड लाइट ऑफ हायर इंटेंसिटी, तो नेचुरली अब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए. मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी रेड लाइट की, अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला. मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला. बट व्हेन आई चेंज द फ्रीक्वेंसी, आई ई मैं रेड लाइट को लेट्स सपोज ब्लू लाइट कर देता हूँ या यूवी कर देता हूँ, समथिंग एल्स, जो कि पूरा स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, दैट गोज फ्रॉम योर रेडियो वेव्स टू ऑल द वे टू योर गामा रेज. यू चेंज द फ्रीक्वेंसी या लैम्डा, राइट. तो व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी या लैम्डा, ही ऑब्जर्व्ड कि देयर वाज अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फॉर दैट वाज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर मेटल. ठीक है. और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड ओनली अकर्ड एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अब ये बड़ी अजीब सी बात थी और इंटेंसिटी हैड नो इफेक्ट ऑन इट. तो फॉर सम रीजन, इवन दो हाइपोथेटिकली क्लासिकली अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, एनर्जी बढ़ाऊं, तो द इलेक्ट्रॉन शुड गेट आउट ऑफ इट. लेकिन नाउ ओनली इफ योर फ्रीक्वेंसी was above a certain threshold,
only then photo emission occurred, which is a very sort of weird non-intuitive finding. अच्छा, फिर उसने एक और चीज़ उसने ऑब्जर्व की. उसने कहा कि यार ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एफ नॉट कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द मेटल. तो फॉर एवरी मेटल जो लाइट की वेवलेंथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ ऐसे फोटो इमिशन हो रही है वो डिफरेंट है. अच्छा, ओके. देन ही ऑब्जर्व समथिंग ऑल्सो रिमार्केबल. he observed कि there was no time delay between emission of electron and absorption of light. I'm going to say photon, we're going to prove this later, but for now just assume the absorption of light. Ignore the photons for now. अच्छा, तो no time delay. Even though over here, if this duct moves from here to here, there was going to be some time delay ना. कोई तो टाइम डिले होगा ना. वेव ने एनर्जी ट्रांसफर की, वो एनर्जी उसने गेन की, वो निकला, इलेक्ट्रॉन वहां से निकला. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जैसे ही लाइट पड़ी है इंस्टेंटेनियसली जीरो टाइम डिले पे योर इलेक्ट्रॉन गेट्स एमिटेड. और देन ही ऑल्सो नोटिस्ड कि इंटेंसिटी जो कि I've reiterated earlier, intensity has nothing to do with starting photo emission. तो अगर आपकी let's suppose threshold frequency is let's suppose blue light है, blue light की जो frequency है, तो इफ़ यू टेक अ फ्रीक्वेंसी लेसर, जैसे रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो रेड लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी कर दो फोटो एमिशन नहीं होगी. नथिंग टू डू विद स्टार्टिंग फोटो एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. अच्छा, बट इंटेंसिटी डज प्ले अ स्मॉल रोल. वो कैसे प्ले करती है? वो ऐसे प्ले करती है कि वंस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स, उसके बाद देन योर रेट ऑफ एमिशन becomes proportional to the intensity. अच्छा, अब ये चीजें तो उसने रॉ ऑब्जर्व कर ली ना, बट व्हाट डू दीज थिंग्स इम्प्लाई? ठीक है, व्हाट डिड ही सॉर्ट ऑफ गैदर फ्रॉम दिस? उसने ये कंक्लूड किया कि यार अगर तो इस तरह हो रहा है ना, वेव की बजाय सॉर्ट ऑफ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर और उसी के ऊपर वी आर ऑब्जर्विंग फोटो एमिशन, then that means कि light is not just a wave, light is a particle. ठीक है, if you assume कि light is a particle, then things will start making sense. क्यों? क्योंकि एक light का particle है, ठीक है, उसकी कुछ specific energy है, और जब ये energy आती है और it transfers the energy to the electron, if the energy that is possessed by this particle is less than the energy that this electron requires to move out, तो फिर फोटो एमिशन नहीं होगी. लेकिन अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए आटम में से वो कम है, तो फिर नेचुरली वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके निकल जाएगा. ठीक है ना, दैट इज़ योर ओनली लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कि यार एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे ही निकल रहा है. तो दीज, और सिमिलरली इंस्टेंटेनियसली भी ऐसे ही हो सकता है कि ये आए पार्टिकल और उसी एक एनर्जी ट्रांसफर करे और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए. ठीक है ना, तो द इंस्टेंटेनियस नेचर कैन आल्सो बी अकाउंटेड फॉर ओनली इफ दिस वाज अ पार्टिकल. तो all of these that I've written in green are essentially evidences for the particulate nature of light. ठीक है, तो I'll write that down. Fancy word है थोड़ा सा. Evidence for the particulate nature of light.
अच्छा, अब let's sort of dig a little deeper into the particulate nature of light. हमने कहा कि यार लाइट अब एक पार्टिकल हो गया, सही हो गया ना. अब उस पार्टिकल को हम मोर स्पेसिफिकली विल कॉल इट अ क्वांटा. ठीक है ना, दिस इज अ क्वांटा. अ क्वांटा इज नथिंग मोर देन अ पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है ना, और जो लाइट का क्वांटा होता है उसको हम फोटोन कहते हैं. तो फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ इसेंशियली लाइट. ठीक है, अब फोटोन की जो एनर्जी, फोटोन की पहले पहले विल गो ओवर द डेफिनेशन. व्हाट इज अ फोटोन? अ फोटोन इज सिंपली अ पैकेट of energy of electromagnetic radiation. अच्छा, लवली हो गया. अच्छा, अब हमने जब देखा फोटोन की एनर्जी कहाँ से आती है, फोटोन की एनर्जी के लिए वी फाउंड द फॉर्मूला which is E is equal to hf, where h is simply a constant, Planck's constant, जिसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखी होती है, बट इफ़ यू रिमेंबर इट तो इट्स गुड. 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. अच्छा, तो एच तो कांस्टेंट हो गया. तो जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर फोटोन. ठीक है ना, तो अगर मेरे पास रेड लाइट है जिसकी और ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रेड लाइट की एनर्जी कम होगी. ठीक है ना, इवन इफ यू हैव वन सिंगल फोटोन. अच्छा, लेकिन अब इससे एक छोटा सा मसला क्रिएट हो जाता है. मसला ये क्रिएट हो जाता है कि हमने तो इंटेंसिटी देखी थी. ठीक है ना, क्लासिकली तो हम समझते थे कि जो वेव होती है हमारी, उसका उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल होती है ना, स्क्वायर रिलेशनशिप होता है. तो इफ़ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो द एनर्जी ऑफ द वेव ऑल्सो इंक्रीजेस. तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इंटेंसिटी ना? अब तो सारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. तो मतलब एम्पलीट्यूड का और वेव का तो कोई सिस्टम ही नहीं है. तो हाउ डू यू मेजर इंटेंसिटी? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ कंसेप्चुलाइज इंटेंसिटी इन द पार्टिकुलेट मॉडल? ठीक है ना, उसको हम फिगर आउट करते हैं बाय कोरिलेटिंग इट विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो जैसे इफ इफ आई हैव वन फोटॉन एंड देन आई हैव थ्री फोटॉन्स, तो थ्री फोटॉन्स के अंदर टोटल एनर्जी ज़्यादा होगी एक फोटॉन की बनस्बत. ठीक है ना, दिस विल हैव, let's suppose hf, all four of these photons are of the same frequency, this will be 3hf. ठीक है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है. यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी. एंड दिस विल सॉर्ट ऑफ हेल्प एक्सप्लेन जो हमने यहाँ पांचवा पॉइंट लिखा था कि वंस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स द रेट ऑफ एमिशन डिपेंड्स ऑन आई. ठीक है ना, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये मेरा मेटल है एंड आई शाइन वन फोटोन एट इट. ठीक है, तो यू विल हैव वन इलेक्ट्रॉन कम आउट. बट लेट्स सपोज इन 1 सेकेंड मैंने ये किया. बट पर्पल वाले केस में अगेन इन 1 सेकेंड, दिस टाइम आई शाइन 10 फोटॉन्स. ठीक है ना, तो नाउ आई हैव इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी, एनर्जी मैंने बढ़ा दी है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो अब उसी 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. तो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद इंटेंसिटी. समझ आई ना? तो इंटेंसिटी कोरिलेट्स टू योर नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will correlate to your sort of photoelectric current. ठीक है ना, करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो रेट होगा उससे हम इंटेंसिटी डिराइव करेंगे. तो विल राइट दिस डाउन कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और रेट ऑफ एमिशन is directly proportional
to the intensity if या when, कब, जब हमारे फोटोन की फ्रीक्वेंसी is greater than f naught of this particular metal, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जब ज़्यादा होगी. तो अगर अगर लेट्स सपोज मुझे आयनाइजेशन एनर्जी है, उसको भी डिटेल में देखते हैं, बट इफ दिस सॉर्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फोटोन की फ्रीक्वेंसी है उससे जब ज़्यादा होगी तब एंड ओनली तब, यानी फोटो एमिशन अगर हो रही हो एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, only then your photoelectric current would be proportional to the intensity if f is greater than f naught. अच्छा, अब हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सॉर्ट ऑफ सिनोनिमस, ठीक है ना, E is equal to hf. तो now let's sort of model the photoelectric emission in a more mathematical nature. थोड़ा सा mathematically इसको देखते हैं. हमने कहा E is equal to hf, ठीक हो गया. अच्छा, अब एक और हम कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है ना, जस्ट फिजिक्स में हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, दैट इज फॉर केमिस्ट्री, दिस इज वर्क फंक्शन. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एच एफ नॉट. ठीक है ना, बिकॉज एफ नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो एमिशन हो. तो नेचुरली उसको जब एच से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, दिस इज द मिनिमम, या वर्क फंक्शन एनर्जी क्या है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या फॉर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू escape the metal surface. सही है, गुड सीन हो गया. तो the minimum energy required for the electron to escape the metal surface, this will be your work function, और उसका formula would be hf naught, because f naught is the minimum frequency required to for photo emission. अच्छा, अब एक तो बड़ा सीधा सा सिनेरियो है ना कि हमारे पास जो इंसिडेंट एनर्जी है, यानी फोटोन की जो एनर्जी है, वो एग्जैक्टली इक्वल हो वर्क फंक्शन के, या द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन. तो फिर तो बड़ा सीधा सीधा इक्वेशन है. हमने देख लिया कि अगर ये एनर्जी कम है तो फोटो एमिशन होगी ही नहीं. ठीक है ना, दो केसेस तो हमने एक्सप्लोर कर लिए. तीसरे केस के अंदर अगर ये एनर्जी ज़्यादा है देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, या देन द वर्क फंक्शन, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो एक्सेस एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रॉन, या जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं बिकॉज इट वाज एमिटेड आफ्टर फोटो एमिशन. तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, वी मेक वन यूनिफाइड फार्मूला. तो दैट इज E is equal to E naught सॉरी, इसको हम लिखेंगे वर्क फंक्शन. तो दिस प्लस योर काइनेटिक एनर्जी, और इसको वी कैन फर्दर राइट एज HF is equal to work function plus half mv square, जिसके अंदर m is obviously your mass of electron. और वर्क फंक्शन को हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको बड़ा ड्रॉबिट हियर, वी कैन राइट दिस एज hf naught. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, और उसके ग्राफ काफ़ी आते हैं, तो विल जस्ट मेक अ क्विक ग्राफ. ओ इट बिकम समथिंग लाइक दिस. वाई एक्सिस पे यू हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, x axis पे you have frequency, और this line sort of comes out to be like this, और इसकी जो x intercept होता है that is your f naught. ठीक है, तो that's basically how it happens. जैसे जैसे आप f naught से नीचे आपकी कोई kinetic energy नहीं होती, there is no photo emission, zero,
नील निश्ता एफ नॉट से ऊपर फोटोमेशन शुरू होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, जैसे यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ ओवर हियर। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद वंस यू हैव दिस, अब हम आते हैं जो दूसरा मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए, एंड दैट दूसरा मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली wave particle duality. अब इशू ये है कि you've learned all your life कि light is a wave, ठीक है, और मैंने अभी कहा कि light is not a wave, it has a particulate nature, particle है वो, तो वो है क्या, wave है या particle है, we don't know. turns out turns out that wave nature और particle nature, they are both properties of something जो कि we're not sure what that is, ठीक है, but they're both properties. जब हम किसी भी चीज को, और turns out this is not only for light, this is true for everything in the universe. तो हम लोग जो हैं, we as human beings, we also have a wave nature and we'll observe how that is. तो हमसे लेके फोटोन से लेके मैथ से लेके जो टेबल है, जो लैपटॉप है, एवरीथिंग हैज बोथ अ वेव नेचर एंड अ पार्टिकल नेचर, विच इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. और जब हम किसी चीज को वेव नेचर के लिए टेस्ट करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व या विजुअलाइज चीजें ना इतने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम लेवल पे, वी कैन ओनली कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स. व्हेन वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स दैट एग्जामिन द वेव नेचर, दिस कम्स आउट एज ट्रू कि हाँ यार वेव नेचर है. जब हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं जो पार्टिकल नेचर को चेक करती हैं, जैसे मोमेंटम की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो टर्न्स आउट कि वो भी ट्रू होती हैं. तो द ओनली सॉर्ट ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस इज कि यार वेव भी है, हर चीज की एक वेव नेचर भी है, हर चीज की एक पार्टिकल नेचर भी है, दीज आर बोथ सॉर्ट ऑफ द सेम, इसेंशली प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम थिंग, ठीक है. तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, मैथमेटिकली वी सी दिस एज p is equal to h over lambda, ठीक है, where p is obviously, if you remember, mv or mass into velocity is h over lambda. Every single moving particle will have an associated wave. अगर मेरा mass है let's suppose 80 kg, I am moving at a speed of 20 meter per second, I will have a wave, but that wave will come out, you can calculate through the formula, to be so small कि it is insignificant to us, 10 raised to power minus 30 कुछ में wave आएगी. लेकिन when I take a photon, तब this wavelength becomes significant, ठीक है ना, तो हम wave observe कर सकते हैं. when I take छोटे छोटे particles लेते हैं that are traveling at very high velocities, so you have a small mass that is traveling at a very high velocity, let's say speed of light के करीब, तो फिर आपकी जो wavelength है वो थोड़ी सी significant होना शुरू हो जाती है. खैर, this is your formula, this is basically this was sort of figured out by de Broglie, so this is called the de Broglie equation. de Broglie बिल्कुल नहीं है, this is de Broglie, और mv is equal to h over lambda. H is again your Planck's constant, 6.63 into 10 की power minus 34, और lambda is your de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, ठीक है. और de Broglie wavelength को we can sort of write as या define as, it is your wavelength associated with the wave of any moving particle. Moving जरूरी है, you know, because the relationship is between momentum and wavelength.
तो स्टेशनरी पार्टिकल्स के लिए दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ वैलिड ओनली फॉर मूविंग पार्टिकल्स। अच्छा, तो हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी भी देख ली, हमने कहा यार ये वेव भी है पार्टिकल भी है। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड एंड फाइनल ऑर्डर ऑफ बिजनेस, which is absorption and emission spectra। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा का क्या सीन है, इसमें क्या होता है? when you sort of if you observe light, white light लो, you pass it through a prism, so you'll see कि it gets separated into a spectrum। सही है ना, रेड लाइट सबसे ऊपर होती है, ब्लू लाइट या वायलेट लाइट सबसे नीचे होती है, the wavelengths get separated and there's a whole spectrum in between। ठीक है ना, ये हमारा एक स्पेक्ट्रम होता है that we observe। now interestingly what happens is कि जब मैं let's suppose मैं यही white light instead of passing it directly through a prism, I have my white light over here, ठीक है, I pass it through let's suppose pressure gas, सही है, low pressure gas, you'll observe के you don't get a continuous spectrum like this, instead you get something like this, you get black lines। ठीक है, why do you get these black lines? You get these black lines because these particular frequencies या wavelengths are the one that correspond to ये जो गैस है ना, इसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स इसको correspond करती है। तो हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ विजुअलाइज दिस, ये तो हमने देख लिया ना एक्सपेरिमेंटली ऐसे होता है जब हम लाइट मारते हैं किसी गैस के थ्रू। इफ़ यू रिमेंबर, योर इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू शेल्स, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, यू हैव डिफरेंट शेल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स प्रिंसिपली, ठीक है ना, क्वांट एनर्जी लेवल्स, सो वी हैव एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस और नथिंग ऑन द एक्स एक्सिस एक्चुअली, और हम इसको अगर विजुलाइज करें तो यू हैव डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, और वी नो के दे आर डिस्क्रीट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, बट यू हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ओवर हियर। तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है एंड आई प्रोवाइड इट विद दिस मच एनर्जी डेल्टा ई, ठीक है, मैं एक फोटोन मारता हूँ जिसका एच एफ इज बराबर टू दिस डिफरेंस इन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एन एक्साइटेड स्टेट। इफ आई प्रोवाइड इट विद एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस डेल्टा ई, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज the electron is not has not escaped yet। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है ना, ऑर्बिटल से बिल्कुल ही दूर जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे you have your nucleus here, you have an electron here, जब मैं इसको फोटोन देता हूँ तो it moves away from the nucleus, it's still in orbit but it is in a shell या energy level that is greater, ठीक है ना, तो ये उठ के एक्साइट होके एक दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट में चला जाता है, इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द सिस्टम, स्टिल पार्ट ऑफ द एटॉमिक सिस्टम। अच्छा, तो यू हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, जो सारे ऑर्बिटल एनर्जीज हैं, दीज आर वेरी डिस्क्रीट। बाय डिस्क्रीट आई मीन कि दे ओनली हैव स्पेसिफिक एनर्जीज, और ये स्पेसिफिक एनर्जीज आर डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर ये हाइड्रोजन का है तो जो ऑक्सीजन का होगा उसके अंदर यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं होगा, शायद यहाँ पे हो और यहाँ पे और यहाँ पे हो, ठीक है, देयर आर डिफरेंट एंड देयर आर डिस्क्रीट सिंगुलर एनर्जी लेवल्स। अच्छा, अब होता क्या है, एक सबसे पहले प्रेमिस तो हमने देख लिया कि यार इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली हैव डिस्क्रीट और स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस नहीं होते,
ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रेंज के अंदर दूर जाता जाए, ठीक है ना. इट विल हैव एन अ लेवल ओवर हेयर एंड अ लेवल ओवर हेयर एंड इट कैन ओनली जंप बिटवीन दीज टू लेवल्स. ये नहीं कर सकता कि वो यहाँ तक जाए और यहाँ यहीं पे रुक जाए बीच के अंदर. नो, फिर इट विल फॉल बैक इन टू प्लेस, ठीक है ना. इफ यू प्रोवाइड एन एनर्जी दैट इज नॉट इनफ फॉर इट टू कम फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, ये ऊपर जाके वापस आ जाएगा, ठीक है ना. इट कैन नॉट स्टे इन बिटवीन टू लेवल्स. इट हैज डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स जिसके बीच के अंदर ही वो रह सकता है. तो इट लाइक आइदर बी हेयर और इट विल बी हेयर, या अगर एक तीसरा एनर्जी लेवल यहाँ पे है तो इट कैन बी ओवर हेयर, बट इट कैन बी रैंडमली अपनी मर्जी से किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स. सेकेंडली, electrons usually occupy the lowest energy level, ठीक है ना. लोएस्ट एनर्जी लेवल इसीलिए सबसे पहले हमारे शेल्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस फिल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाते हैं. द क्लोजर यू आर टू द न्यूक्लियस द लोअर यू हैव योर एनर्जी लेवल इज. अच्छा, अब when we supply energy, when energy is supplied, तो हमने देखा कि the electron gets in an excited state and jumps to a higher energy level. The electron is excited and jumps to a higher energy level. ये excuse my horrible handwriting. अब उसके बाद क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट के ऊपर व्हेन आई एम ओवर हेयर, अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना. इग्नोर दिस वन फॉर अ सेकंड. अब इट इज अनस्टेबल ओवर हेयर, ठीक है ना. इट्स नॉट स्टेबल, इट वांट्स टू गो बैक. अब व्हेन इट गोज बैक तो फिर इसी डेल्टा ई का फोटोन एमिट हो जाएगा, emits a photon. तो जो एनर्जी लॉस हुई है, देखो पहले यू सप्लाइड एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन वेंट अप, नाउ द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी एंड इट गोज बैक डाउन. तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, वो लॉस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन, और वो फोटोन निकलेगा ऑफ अ सर्टेन एनर्जी विच इज इक्वल टू दिस डेल्टा ई या दिस डिफरेंस इन एनर्जी. और हर एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली. तो यू विल हैव अ फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना. अब विल सॉर्ट ऑफ, और ये दिस वुड बेसिकली भी, अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, आई विल मेक सम स्पेस ओवर हियर. इफ यू लुक एट दिस मैथमेटिकली, लेट्स से दिस इज E1, दिस इज E2 and this is E1. So your HF, which is where F is the frequency of the emitted photon, will be equal to E1 minus E2. अच्छा, so we'll just quickly write this down. कि excited state electrons are unstable, they move back to the ground state. ground state क्या होती है? ground state is your basically normal unexcited state, उसको हम ground state कहते हैं. move back to your ground state and release a photon. photon के energy level हमने देख लिया, will correspond to the energy gap between the two energy levels. अच्छा, अब हमने देखा दो प्रोसेसेस है ना. एक प्रोसेस में एक्साइटेशन हो रही है, एक प्रोसेस में डी एक्साइटेशन हो रही है. दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग यू हैव अ स्पेक्ट्रम, ठीक है. तो इफ आई कॉपी दिस इमेज रियल क्विक, इसको मैं नीचे पेस्ट करके एक्सप्लेन. अब होगा ये कि लेट्स सपोज यू टेक योर H2 गैस, ठीक है ना. सिनेरियो 1 में, स्टेप 1 में होगा कि यू थ्रो इन एनर्जी, यानी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो यू पास इन लाइट, और फिर इस लाइट का जब हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो द स्पेक्ट्रम विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ये वाला.
इट विल हैव ब्लैक लाइंस. क्यों? क्योंकि ये वाली एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो गई थी. क्यों? बिकॉज दीज कॉरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल ऑफ दिस हाइड्रोजन आटम. E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है, E4 ये है. ठीक है ना. तो जो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार अगर उसके एनर्जी लेवल्स थे तो ये चार लाइनें कॉरेस्पॉन्ड टू दैट एनर्जी लेवल्स. और ये वाली लाइट जो थी, सिर्फ ये वाली पर्टिकुलर काले धब्बों वाली लाइट, ये एब्जॉर्ब हो गई थी और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था. इसीलिए अब हमारे पास स्पेक्ट्रम में मिसिंग आ रही है. ठीक है. स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में लेट सपोज आई टेक अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, और मैं देखूं कि इसके अंदर से लाइट निकल रही है, और इसके अंदर से जो लाइट निकलेगी दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू योर एमिशन स्पेक्ट्रम. नाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट आर गोइंग बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, और ये फोटोन रिलीज कर रहे हैं, और फोटोन जब रिलीज कर रहे हैं तो यू सी एग्जैक्टली सेम कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट. ठीक है ना. जो एमिशन में नजर आ रही है वही वाले चार डॉट्स अब वो नजर आना शुरू हो जाएंगे जब ये एमिशन होगी. इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होंगे तो एनर्जी, उस एनर्जी के फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है ना. और the sort of remarkable thing about this electron transitioning or these spectrums is कि these are unique for every single element. अब अगर मैं कहूँ कि let's suppose, जैसे to exemplify, you have एक तरफ आपके पास H2 है, H2 को I'll actually draw in green, और दूसरी तरफ मेरे पास let's suppose blue के अंदर I have helium. सही है. तो H2 का जो एनर्जी लेवल होगा E, let's suppose you have over here HF1 या E1, यहाँ पे आपका HF2 है, यहाँ पे आपका HF3 है. सही है ना. और या E1 E2 E3 कह लो, let's write it E1 E2 E3, तीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट हैं. फिर हमारा जो ब्लू वाला है हीलियम, उसका कोई और एनर्जी लेवल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है. दिस इज E1 is equal to E4 कर लेते हैं इसको, HF4, E5 is equal to HF5 और E6 is equal to HF6. These are unique and different for every single element. तो होगा क्या कि हीलियम का जो स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर से मेरे पास F4, F5 और F6 की लाइट मिसिंग होगी, और एमिशन स्पेक्ट्रम में मेरे पास F4, F5 और F6 की लाइट मौजूद होगी. सिमिलरली हाइड्रोजन के केस के अंदर मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आई विल हैव F1, F2 और F3 की लाइट मिसिंग, और एमिशन स्पेक्ट्रम में आई विल हैव ओनली F1, F2 एंड F3 की लाइट. ठीक है ना. these frequencies are all different. तो using these spectrums I can identify कि कौन सा एलिमेंट है. इसीलिए if you know, हमें केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स कैसे पता चल जाती है. ठीक है ना. हाउ कैन वी से कि यार ये वाला फलाने स्टार के अंदर ये वाला केमिकल है, वो वाला प्लैनेट है उसके अंदर ये केमिकल है. वी डोंट सेंड आवर रोवर्स ओवर देयर कि वो वहाँ जाएं और वहाँ से सैंपल लें और फिर वापस आएं और फिर हम उसको चेक करें. हम लाइक आर नासा ने मैक्सिमम मार्स तक भेजे हैं ना. हाउ डू वी नो अबाउट द सन? हाउ कैन वी गो टू द सन और चेक देयर एनी इक्विपमेंट ऑफ द सन विल बर्न? हम करते क्या हैं, हम लाइट के सैंपल्स लेते हैं फ्रॉम द सन. लेट्स सपोज दिस इज द सन. ठीक है. सन की एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा हम लेंगे, स्पेक्ट्रा, एनी स्पेक्ट्रा, और देन वी विल कंपेयर दैट स्पेक्ट्रा टू हमारे पास जो डेटाबेस है, यानी जितने सारे हमारे एलिमेंट्स अर्थ पे हैं, H2, हीलियम, ये वो सारे ब्ला 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 ब्ला, उन सब के स्पेक्ट्रम से कंपेयर करेंगे. और व्हेन द टू स्पेक्ट्रम्स मैच विल से कि अच्छा सन में से क्योंकि ये वाला स्पेक्ट्रम आ रहा है जो कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इसीलिए सन के अंदर हाइड्रोजन है. दैट इज हाउ वी डिटरमिन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स एंड डिफरेंट गैलेक्सीज. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिटरमिनिंग केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि हर एलिमेंट का एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं और डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं. तो यू कैन चेक
फ्रॉम द लाइन स्पेक्ट्रम के यार अच्छा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, ठीक है. तो that is about it. You had three major concepts that will quickly recap. The first was photoelectric emission. The second was wave particle duality, and the third subtopic was your absorption and emission.